Welcome, 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 everybody. Welcome to our wonderful, soulful morning. Let's start a beautiful morning by bowing in gratitude to all the beings, the higher beings who are around us, who surround us, who are helping us, protecting us, guarding us, guiding us at this moment in all given points of time to embrace this inward journey, to help us reach where we wish to reach at a soul level, helping this physical body, healing our emotional, mental, physical, etheric body. Let's feel them around us. Feel their blessings in every pore of your being. When we have so many angels, angel guardians looking around us, spirit guides talking to us, our soul giving us a message, may we all be intertwined within each of them and be ready, open, and receptive to all that is getting downloaded. Because it's for our growth. We may have knowingly or unknowingly stopped tuning within. Now that we are in this beautiful path of the soulful mornings, let's congratulate ourselves, welcome ourselves in this new path that we are now treading on. This path which takes us inward, deep inside our hearts, entering the chambers of our heart where all there is magnificence. Heart speaks the love language. Soul is all about love. Our body is all about love, which is the reason we are existing, which is the reason we haven't disintegrated. Let's go inside and build ourselves with a lot of love. And now at this given point, take a deep breath in and inflate your tummy like a balloon. This is the positive energy coming inside you, filling your every pore of your being. And as you exhale, emit all the darkness that's stored inside you. This darkness could be in the form of traumas, could be in the form of bad relationships, could be in the problem, could be like a problem of abundance, lack of abundance. Maybe you are witnessing some kind of financial problems, some kind of emotional problems. Whatever problems you have in this beautiful portal when the routes open in the amazing August of 2023, let's just manifest beautiful energy coming inside us and surrender all the energy which is dark outside us, knowing that Mother Earth, universe, whatever meets it becomes positive. So let our intentions be healing, knowing that we are all healing at a cellular level. Just feel the beautiful vibration. Keep breathing in, minimum 7 times. The Saptrishi is guiding us, protecting us, guarding us. So feel the energy coming in from the first Rishi and just releasing it to Mother Earth. She's a sister of these Rishis, Mother Gaia, who's always ready to heal us. So if you wish, if it's easier, feel the energy coming in through your Brahmastra chakra, from your Brahmandra chakra, your crown chakra. On top of your head, feel that it's opening up. The crown chakra is opening. And feel the white healing light
From each rishi coming in one by one as you're taking a deep breath in. And as you're exhaling, you can feel the energy leaving through your feet or through your breath work, whatever is more convenient to you. Become a carrier of love and blessings and light. Feel the light coming in you, filling every pore of your being, and exhale all the darkness. Continue breathing in and breathing out. Inhaling so much of light. Exhaling all the darkness. The more you exhale darkness, the more there is place in your body to absorb the new light of blessings from the Saptrishis. Keep inhaling in, keep exhaling out, keep inhaling in, keep exhaling out. Mother Earth has become a planet just for ascension of us beings. Because we were somewhere in the lower frequency and now our bandwidths are resonating and we are ready for ascension. And as you feel fully blessed, see wherever the light needs to reach, any blockages in your body. And wherever you feel there's a blockage, start feeling the energy swirling. So that the energy is swirling and taking all over the negativity, like removing it. And now let's fold our hands in gratitude. Gratitude for all the sages, rishis, saptrishis, maharishis, for all the angels, for all the guardians, for all the spirit guides, for our master, for our soul. To our parents who brought us on Mother Earth, on this planet. To our ancestors who are always helping us heal. To all the higher beings who are around us, helping us in our inward journey. And now let's rub our hands together. Feel the warmth. Bless your beautiful eyes that see the beautiful world. Your face, your head, neck, chest, shoulders, hands, up and down and up, front and back and front. Coming all the way down to your abdomen, your thighs, knees, calves, ankle, feet. Turn your hands around, bless the backside of your ankles, your soles, knees, backside, thighs, hips, lower back, upper back. And gently open your eyes with a beautiful smile. Thank you, everybody, for joining in this beautiful meditation where we have surrendered and we have also absorbed, manifested some nice energy. Today we are on day 4, and today we are starting this beautiful, wonderful chapter number 3, which is about coming back. So let's understand what it is all about. If you have any questions while the reading is going on, please feel free to put them in the chat and I shall reply or make my best earnest effort to make you understand. Chapter 3, coming back. We choose when we will come into a physical state, when we will leave. We know when we have accomplished that we were sent down here to accomplish. When you have had the time to rest and re-energize your soul, you're allowed to choose your entry back into the physical state. ये बात हो रही है जब एक soul एक body छोड़ देती है. A person has died, the soul has gone into the higher realms, and the soul has done its soul work in the spiritual realm, in the higher realm, in the heaven realm. And wahan angel guardian sabse baat karke, it has decided कि now I will take a reincarnation into Mother Earth. In this family,
in this being so that I can advance whatever I was meant to learn, whatever I was meant to accomplish. रेस्ट हो जाता है, री एनर्जाइज हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं टू कम अगेन इनटू ह्यूमन लाइफ. एंड देन वी चूज कि ये माता पिता, ये कंट्री, ये सराउंडिंग, ये फाइनेंशियल लेवल या ये स्ट्रगल्स मुझे लेने हैं, इनसे कुछ सीखना है और अपनी लाइफ जीनी है. बट ऑफन टाइम्स हम क्या करते हैं, बार बार सेम लाइफ की लूप लेते हैं. क्यों? एक लाइफ जिया सेम पैटर्न, दूसरी लाइफ जिया सेम पैटर्न. क्यों? हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं. हम सोचते हैं उसके पास तो इतनी अबंडेंस है, मेरे पास लैक क्यों है? क्योंकि हम उसकी अबंडेंस को ब्लेसिंग नहीं दे पा रहे और अपने लैक को समझ नहीं पा रहे कि मेरे लिए लेसन क्या है सीखने का इसमें. जब हम सीख जाएंगे लेसन और अपने आप को विक्टिम बनाना बंद कर देंगे, तब हमारा असेंशन शुरू हो जाएगा, अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी. और ये अबंडेंस असेंशन रिलेशनशिप्स में आ सकती है, फाइनेंशियल आ सकती है, फिजिकल आ सकती है. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, उन सब में इफेक्ट करके वी कैन बिकम नंबर 1. सो हम अब इससे आप अपने आप को रिलेट करेंगे कि आपने जो इस लाइफ में अपनी बॉडी ली है, बर्थ लिया है, आपका पर्पस क्या था आने का, सोल का पर्पस क्या था. आप मुदिता या आप सुप्रिया या अंकुर या माधुरी या मैं प्राची या कोई भी, इट्स नॉट अबाउट मी और यू, इट्स अबाउट मुझे ये बॉडी मिली है, ये लाइफ मिली है, ये फैमिली मिली है, मैं यहाँ क्या करने आई थी या क्या करने आया था. हम सब के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है नीचे आने से पहले. सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरा प्रशांत के साथ, मेरा मेरे बच्चों के साथ या किसी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी. अब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. पर जब अच्छा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम नहीं बोलते हीलर्स को जाकर कि मुझे इसको खत्म करना है, आप कैसे, अब बताओ मुझे. हम कब बोलते हैं? जब हमें चैलेंजेस आते हैं उसमें. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको आज जो करनी है, जर्नलिंग करनी है कि आपका किस इंसान के साथ संबंध खराब है, क्यों खराब है, आपने उसको क्यों पावर दे रखी है कि वो आपको बुरा फील करवाए. अगर ऐसा है तो आपको कॉर्ड कटिंग करनी होगी. हम सबके, अगर आपको ध्यान हो, जब हम पैदा होते हैं मदर अर्थ पे, प्लैनेट पे, अपनी माँ के सहारे एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो काटते हैं माँ के नाभि से, आपकी नाभि से क्लिप करते हैं. ऐसी कॉर्ड्स हम बहुत लोगों के साथ लाइफ में बना लेते हैं, कहीं से भी बन सकती है, किसी भी लेवल से. इन कॉर्ड्स को हमें काटना पड़ता है और अभी बिल्कुल सही वक्त है ये सब काम करने का. सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपने किसी और को पावर दे रखी है आपके ऊपर, जब भी आप उसके घर जाते हैं, वो आपके घर आता है, कुछ टिक्का टिप्पणी करते हैं जिससे आपको अपने अस्तित्व के बारे में बुरा लगता है, वो आपने, प्लीज समझ जाइए, ये वो नहीं कर रहा है, ये कर्म का चक्र है. कभी आपने इस लाइफ में या पहले लाइफ में उसके साथ सेम चीज किया है. एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब वो रिएक्ट कर रहा है, अगर वो आपको फील करवा रहा है तो आपको पहली बात तो अपने आप को फॉरगिव करना है कि आपने उसके साथ ऐसा करा, आप कैसे कर सकते थे, लेकिन आपको फॉरगिव करना है क्योंकि उस समय की कॉन्शियसनेस के हिसाब से आपने वो चीज करी. अब अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो आपके साथ ये कर रहा है या कर रही है. जब आप उसको पावर देना बंद कर देंगे, वो आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा. ये आपको समझना है और जब आप समझ जाएंगे लाइफ बहुत आसान हो जाएगी. आइए डॉक्टर वाइस की मॉर्निंग में शुरू होते हैं, समझते हैं कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं. आज मैं थोड़ा ज्यादा हिंदी में ट्राई करूंगी, कल मुझे मैसेज आया था कि थोड़ा सा हिंदी में करें,
आई एम हैप्पी टू डू हिंदी, बट पहले कई बार हमारे पास स्टूडेंट्स थे जो इनको इंग्लिश समझ में आती थी, हिंदी नहीं आती थी, सो हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करते थे, बट नाउ आई एम हैप्पी टू डू दैट. ऑलराइट. So not accidentally or coincidentally are we born into our families. We choose our circumstances and establish a plan for our lives before we are even conceived. Our planning is aided by the loving spiritual beings who eventually guide and protect us while we are in our physical bodies as our life's plan unfolds. Destiny is another name for the unfolding drama we have already chosen. आपने सुना होगा ना, प्रारब्ध है, मेरी किस्मत है. तो आपने ये किस्मत, ये प्रारब्ध अपने आप चूज किया था माँ की कोख में जाने से पहले कि मुझे ये लेसन सीखने हैं, तो मेरे साथ ये लेसन आए. लेकिन जब वो लेसन आते हैं, वो हमारे साथ क्यों हो रहा है? आप तो भूले बैठे हैं, आप ही ने तो सब लिखा है अपना कहानी. यू हैव co-created your life with भगवान जी. उनके साथ बैठ के, अपने एंजल गाइड के साथ बैठ के, स्पिरिचुअल बीइंग के साथ बैठ के, हायर लोग के साथ बैठ के आपने लिखा है अपना कि मुझे ये करना है इस लाइफ में. सो स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट लिविंग. जो कुछ आ रहा है सर माथे पे, लेट इट कम, लेट इट कम. आपको ये पता होगा ना, प्रॉब्लम्स भगवान किसको मैक्सिमम देते हैं? जो प्रॉब्लम ले पाता है, उनका निवारण कर पाता है, क्योंकि हमने सोल लेवल पे लिखा है ये कॉन्ट्रैक्ट. आगे बढ़ते हैं. There is considerable evidence that we actually see the major events in the life to come, the points of destiny in the planning stage prior to our births. This is clinical evidence gathered by myself and other therapists from our patients who experience pre-birth memories while under hypnosis, during meditation, or through spontaneous recall. Mapped out are the key people we will meet, our reunions with soulmates and soul companions, even the actual places where these events will eventually occur. Some case of deja vu, that feeling of familiarity as if we have been in that moment or that place before, can be explained as a dimly remembered life preview coming to its fruition in the actual physical lifetime. ये बोल रहे हैं कि सारे जो लाइफ के हमने चीजें मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी होती हैं, वो हमेशा हम अपनी लाइफ में देख पाते हैं. कई बार हमें पता भी होता है उनके बारे में. ये सब हम पहले से प्लान करके आते हैं, और हमने वो लाइफ जो हम जिएंगे पहले से देख ली होती है, लिव कर ली होती है. इसीलिए कई मोमेंट्स पे जब आप बैठे हैं, आप बोलते हैं बट ये सीन तो मैंने देखा हुआ है, इसलिए कि डेजा वू, या ये सब कुछ तो मैंने विटनेस किया है. तुम लोग बैठे हुए थे इस टेबल पे, हम यहाँ बैठे हुए थे, ये खा रहे थे, ये बातें हो रही थी, ये तो मुझे सब कुछ पता है. ये तो ऐसा फीलिंग हो रहा है कि डेजा वू है. आई हैव ऑलरेडी लिव्ड दिस. कि एक्चुअली आप वो लिव कर चुके हैं बिफोर प्लानिंग टू कम, इसलिए डेजा वू होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बता रहे हैं कि क्लिनिकली ये प्रूव हो चुका है, बिकॉज लोगों ने थेरेपीज में जाकर इसके बारे में बोला है. The same is true for all people. Often people who are adopted wonder whether their life plan has been somehow disrupted. The answer is no. Adoptive parents are chosen as well as the biological ones. There are reasons for everything and no coincidence exists on the path of destiny. तो कई लोग सोचते हैं कि अडॉप्शन हो गया, मेरा अडॉप्शन क्यों हुआ? आपने ये, आपके पेरेंट्स का कुछ कर्म होगा जो आपको फिनिश करना होगा, वो आपको मदर अर्थ पे लाके, उन्होंने मदर अर्थ पे लाके खत्म कर दिया अपना पोर्शन. इट्स नॉट लाइक कि आप कम लव्ड है या अडॉप्टेड पेरेंट्स क्यों आ गए, ऐसे चैलेंजेस क्यों हो गए. हर चीज का एक रीजन होता है, एंड दैट रीजन इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. Although every human being has a life plan, we also have free will, as do our parents and everyone with whom we interact. Our lives and theirs will be affected by the choices we make while in physical state, but the destiny points will still occur. We will meet the people we had planned to meet. We will face the opportunities, obstacles that we had planned long before our births. How we handle these meetings, however, our reactions and subsequent decisions are the expressions of our free will. Destiny and free will coexist
and interact all the time. They're complementary, not contradictory. कई बार हम डिसीशंस, देखिए हम सबको पता है ना, दो पाथ होते हैं, एक सही एक गलत, जो हमें हमारी कॉन्शियसनेस बताती है। ये हम किस पाथ पे जा रहे हैं, किस पथ पे जा रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। हमारे पास एक फ्री विल दी गई है, अच्छा चूज करो, बुरा चीज करो। अब सपोज अगर किसी को शुगर की बीमारी है, उसको पता है मेरे लिए ये पेस्ट्री है, ये जलेबी है, वॉट एवर खाना इज जहर, बट उसको मीठे खाने की बहुत हुड़क उठ रही है। अब वो मीठा खा रहा है जो भरा हुआ है डेंस शुगर से, या वो एक आम या केला खा रहा है जो कम शुगर है। दोनों में उसको नुकसान करेंगे, बट एक कम करेगा, एक ज्यादा करेगा। और एक और बात है जहां उसको पता है मुझे खाना ही नहीं है, मैं कुछ सेवरी खा लेता हूँ, या मेरा मन है मैं सॉफ्ट खा लेता हूँ, मैं वॉक पे निकल जाता तो पानी पी लेता हूँ। फ्री विल हम सबको दी गई है, क्या चूज करना है हमारे ऊपर है। बट यस, जो डेस्टिनी पॉइंट्स होते हैं, अब हमको यहां से यहां जाना है, मैं ये भी पाथ ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ। इसमें नेगेटिव कर्मा अक्वायर कर सकता हूँ, इसमें शायद पॉजिटिव भी कर सकता हूँ, शायद नहीं भी कर सकता हूँ। मेरे ऊपर है मुझे उस पॉइंट पे कैसे पहुंचना है। अब मैंने अगर इन्वेस्ट किया है उस बात में, अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप में लोगों को लव दिया है हर पड़ाव पे, अपने आप को पढ़ाई कराई है, सिखाया है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऊपर बिठाया है, तो वहां जब मैं जाऊंगी, जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो ज्यादा होगा ना। जैसे बैंक में हम इन्वेस्ट करते जाते हैं तो ज्यादा बैंक बैलेंस होता है, हम निकालते जाते हैं तो कम होता है। सो हम कर्म अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें हर चीज में, जब कभी बाधाएं आए, जब कभी अपॉर्चुनिटीज आए, तो एक बार सोचना कि मुझे इसके ऊपर क्या करना है, कैसे हैंडल करना है अपने आप को। रिएक्शन करना है कि रिस्पॉन्स करना है, डिसीजन फटाफट लेना है कि सोच समझ के लेना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, अपनी फ्री विल से करना है, या मैंने अपने आप को एफर्मेशन बोले, यार ये होता है तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होगा। बट ये होता है तो ऐसा ही होता था, अब से ऐसा होगा, ये मुझे पता है, बिकॉज आई एम रेडी टू ड्रॉप ऑफ ऑल द ओल्ड बैगेज एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ये इतना सुंदर पोर्टल है, हम जो चाहें उस एनर्जी में टैप कर सकते हैं। So very imperative for us to understand that I can drop the excess baggage and choose the right path. The consensus of evidence from my regression patients is that the soul appears to make a reservation for a particular physical body around the time of conception. No other soul can occupy that body. The union of body and soul is not completed, however, until the moment of birth. Before this time, the soul of the unborn child can be in and out of the body, and it is often aware of experiences on the other side. It may also be aware of events outside its body and even outside the mother's womb. The soul can never be harmed. Neither miscarriages nor abortions harm the soul. When a pregnancy does not come to term, it is not unusual for the same soul to occupy the body of a subsequent child of the same parents. समझिएगा, कितनी बार लाइफ में होता है, हमने सुना है, देखा है, कई लेडीज ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और आप मिसकैरी कर देते हैं, या आप डिलीवर कर देते हैं और बच्चा आगे सरवाइव नहीं कर पाता। अब ये सब जो कहानी है ये सोल लेवल पे है, आपका और उस सोल का कनेक्शन तो है, क्योंकि आप निमित्त मात्र बन रहे हो उसको यहाँ लाने के लिए। बट सोल ने डिसाइड किया है कि जैसे होता है ना, आपने सपोज कोई कोर्स ज्वाइन किया, आपको लगता है कि हाँ ये कोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है, और हाँ मैंने सब सोच लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मैं सुबह ये उठ पाऊंगा, कर पाऊंगा, और मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। आप रजिस्टर भी कर लेते हो। फिर 4-5 दिन बाद आपको लगता है बट सुबह के समय तो बहुत नींद आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, या मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। आपने रजिस्टर किया हुआ है फिर भी आप छोड़ देते हैं, क्यों?
क्योंकि आपको नहीं जम रहा है। इसी तरीके से सोल जब माँ की कोख में आती है, उसको कई बार नहीं जमता है, नहीं समझ में आता, उसको जो लाइफ उसने चूज करी है, आगे दिख रही है, वो लगता है कि नहीं यार, मेरे को तो ये नहीं जीना, मैं कुछ और जीऊंगा। तो जब सोल एग्जिट करती है बॉडी से, मामा का मिसकैरेज हो जाता है। उस सोल को कुछ नहीं होता, बट आपकी सोल को, माँ की सोल को थोड़ा आघात होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका भी कुछ था जो आप लिखा के लाए थे कि होना ही है। कल हमने पढ़ा है ना रिग्रेशन में कि सेम बच्चा एक लाइफ में पैदा होता है, मर जाता है, दूसरी लाइफ में फिर सेम पेरेंट्स के पास आता है, फिर पूरी आयु होती है और माँ का डिस्कनेक्शन होता है। ये सब सोल लेवल पे बातें हो रही हैं। किसी भी सोल को कोई भी हार्म नहीं कर सकता, ये बात समझ लीजिएगा। आपकी सोल में आज आप जो भी पढ़ाई लिखाई अध्यात्म कर रहे हैं या अच्छा बुरा कर रहे हैं, इसके साथ ही आप खत्म होंगे, इसके साथ ही आप अगली बार स्टार्ट होंगे। इसलिए बोलते हैं जितना अच्छा हो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बिना एक्सपेक्टेशन के। कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करने के और मौके आएंगे। एंड बिलीव यू मी, ये बहुत आसान है इस कुएं में कूदना। बाहर निकलने के बाद फिर कुएं में कूदना बहुत आसान है। यही तो ह्यूमन जर्नी है। हम बोलते हैं यार पहले तो मैं इतना अच्छा सीख गया था, इतना अच्छा हो गया था, सब बढ़िया चल रहा था, मैंने ही इनडिसिप्लिन दिखाया तो मेरे साथ वापस प्रॉब्लम्स आ गए। दैट्स नॉर्मल, डोंट जज योरसेल्फ। प्रॉब्लम आई है ना, सोल्यूशन भी आपको पता है, आपके हाथ में है। वापस चढ़ जाओ ऊपर, कुएं से बाहर निकल जाओ। आपको पता है ना सीढ़ियां क्या है, पहले आपने ऑलरेडी कवर किया वो जर्नी, उसी के सहारे फिर चल जाओ। या या वो रस्सी है, उसका सहारा ले लो। फॉर एग्जाम्पल इस सेशन में मैं शायद वो रस्सी हूँ कि मेरे सहारे से आप निकल रहे हो। मैं भी तो, मेरा भी तो पर्पस यही था ना कि मुझे रस्सी बनना है, मुझे लोगों को डार्कनेस से निकालना है और खुद भी बेटर होना है। दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। After I gave a lecture on paranormal phenomena, a graduate psychology student told me about a dream he had had when his wife was 4 months pregnant. At that time, the sex of the fetus was not known. One night, his unborn daughter came to him in a vivid dream, announcing her name, describing her immediate past life, explaining why she was choosing to be born to this young couple, her karmic purpose and plans. He awoke with a riveting dream sharply etched in his mind. He turned towards his wife. I just had the most amazing dream, he began, at which point she cut him off. Me too. I dreamt our daughter came to me. Same name, same past life, same plan, same details, same dream. Can you believe? दोनों हस्बैंड वाइफ, दे आर प्रेग्नेंट विद द चाइल्ड। वो लड़की आके बोल रही है कि मेरा ये नाम है, मेरी ये पास्ट लाइफ है, सब कुछ सेम बताती। They were both shocked that both mother and father received the very same message during simultaneous dreams, served to validate the information and to make the knowledge even more powerful. 5 months later, a beautiful baby girl was born to them. हम सोल लेवल पे डिसाइड कर लिया, हमने, आपको समझ में आ गया कि हमें किस माँ बाप के पास, किस लाइफ में, किस कंट्री में, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड में जाना है, किस लेसन के लिए जाना है। मेरा नाम क्या होगा वो भी मैं सोल लेवल पे डिसाइड करूंगी और मैं किसी की मुख से वो नाम निकलवा दूंगी। जैसे मेरा नाम प्राची है, मैंने अपनी नानी माँ की मुख से निकलवाया, डिसाइड किया था सोल लेवल पे। और ये बात समझ लीजिएगा, जिनका जो नाम होता है उनकी पर्सनालिटी उस नाम से कनेक्टेड होती ही होती है। नाम इज इक्वल टू अ सेंस। फॉर एग्जाम्पल, माई हस्बैंड्स नेम इज प्रशांत। He's actually like the Prashant Mahasagar, very tranquil. किसी भी चीज में वो, in 23 years of my married life, मैंने उनको बहुत उत्तेजित होते हुए, raging with temper या बैलेंस खोते हुए नहीं देखा। He is very शांत। मेरा नाम प्राची है, which means east, जहाँ सूरज उगता है, which also means enlightenment, और मैं इसी राह में हूँ, डार्कनेस को खत्म करना, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब आपका नाम क्या है, आपका उससे एक पहला समझिए कि क्या मीनिंग निकल रहा है। आपने वो लेसन चूज किया है एट योर सोल लेवल। सबसे चीज तो सिंपल यही है समझना हम सबको, मेरा नाम क्या है, मेरे नाम का मीनिंग क्या है, ओ मेरी लाइफ का ये पर्पस है। सबसे आसान है बेस लेवल पे, बिना किसी सोल स्टडी में जाने के लिए।
ऑफ कोर्स देर आर पीपल जो चैनल करते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, वो सब भी है, वो अलग कहानी है। वहां हमको और रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, एक बार आप लोग को सुनाया भी था। मेरी टीचर ने मेरा चैनल किया था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या था, एंड तब मुझे पता चला कि मैं क्यों करती हूँ ये सेशंस, बिकॉज मैंने ये चूज किया था, तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। कोविड आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली करने की, नहीं तो नहीं मिलती, नहीं तो मैं अपने बिजनेस में ही रहती। अब और सुनते हैं। Marie, an Italian woman in her late 50s, was amazed by the vividness and what turned out to be accuracy of her recall for an incident before a month before her birth, when she was yet in the womb. Marie had been hypnotized or regressed before, and she was having a difficult time accepting her experience as actual memory, even though the detail and clarity were amazing to her. I kind of don't believe it, she began. When you were talking and you said you are in your mother's womb, I saw myself sitting in her womb and she was sitting at a table. Marie went on to describe her mother's Bronx apartment in great detail, especially the kitchen where her aunt and mama were sitting, drinking tea, eating the special Italian cookies that her aunt always made for the Christmas holidays. Marie had also seemed surprised that the Christmas tree was already up and decorated since Christmas was still 2 weeks away. The conversation between Marie's mama and aunt had turned very serious. While she was sitting there having a cup of tea, Marie continued, I saw her and my aunt, and I was naturally in the womb there. And she said to my aunt, I'm going to die, and I'm not going to raise this girl child. Incredulous, Marie explored the memory. Carefully, she described her thoughts as she watched and listened from the womb. And I said to myself, this is weird. My mother did die. This was about a week or two before Christmas. My mother did die on the 14th day of January from pneumonia. Marie paused and then looked up excitedly. Now I can't wait to go home and call my aunt to ask her, was she sitting there and did she say this to you? I'm sure she will remember and she's going to think I'm nuts, but this is what I saw the two ladies doing. And I never knew this before. Marie had never been in her mother's old apartment after her birth, nor had her aunt told her about the conversation. Her aunt could, however, be counted on to remember exactly what was said. According to Marie, the 80-year-old woman was sharp as a tack. With 2 hours, Marie reported back. She had contacted her aunt, who confirmed everything. Sorry, just a minute. I called her and said, Aunt Marie, it's Cookie. Who the hell died now? I said, nobody died, but I'm going to talk fast. And you just listen to me. And I told her, I want to know, were you at the table with my mother with the plate of cookies and the Christmas tree was up in the her aunt cut her off? Who the hell told you? She asked, she demanded. I'm not even going to go into this, explain to you, Auntie, but tell me what happened that day. Marie's aunt said, I came over with a hot plate of cookies, which I made for your mother, which were her favorite cookies, and she would eat them and rubbed her big fat belly. And she used to say, this is for my little Cookie. I have had the nickname Cookie today. Everybody calls me Cookie because I love those things so much. According to her aunt, Marie's mother had eaten 2 cookies and stared at the Christmas tree. Now, this was 2 weeks before Christmas. Marie explained she put the tree up early because she thought I was going to be a Christmas baby. Sitting at the table, the pregnant woman told her sister, Marie, I'm not going to live to see this child raised. I will see her and I know it will be a girl and I want it named Rosemary if I do not make it, but I will see her. I know that, but I know I'm going to die. Aunt Marie responded, but this is ridiculous. But Marie's mama was determined to have her say, look at the Christmas tree and put a present under it every year for me, even though I'm not here, she continued. Up to that point in the pregnancy, Marie's mother had been in excellent health. There was no physical reason to justify the ominous prediction. Lo and behold, her aunt had continued, your mother had a little sniffle. That's all she had. Christmas Day, she came down with pneumonia. You had complications being born. Your mother died of low-burn pneumonia and you were born and you survived. And it's absolutely true, Marie told her aunt. Aunt Marie, meanwhile, continued to demand, who the hell told you?
Cookie or Marie says, I guess I can see and I can hear from the womb, Marie admitted. Now I believe it. Her aunt's recollections had confirmed and enriched her own emotional vivid experience. Marie still had some questions for her aunt. She was able to fill in even more blanks. She discovered that even her mother's kitchen and apartment were exactly as she had observed them. Aunt Marie told her that she had named her according to her mama's instructions. She then repeated her dead sister's request to put presents under the future Christmas trees. I asked, did you do it? And she said, no, we both smiled. So beautiful, right? सोल ने प्रेजेंस ले ली है ममा के वूम्ब के अंदर और ममा क्या बात कर रही है, क्या फील कर रही है, वो सोल फील कर रहे, वो सोल की मेमोरीज बन जाती। इसीलिए बोलते हैं ना, जब माँ प्रेग्नेंट है उसको बहुत ध्यान से चीजें बात करनी चाहिए, सिचुएशन में जाना चाहिए, अपने आप को एलिवेट करना चाहिए, बिकॉज वो सब संस्कार बच्चे में गर्भ संस्कार बन के आते हैं। हमने सुना है ना, उसी को साइंटिफिकली जस्टिफाई किया जा रहा है। इंडिया तो अध्यात्म का देश है, स्पिरिचुअलिटी का, ये सब तो सुनते ही आए हैं, बट ये वेस्टर्न साइंस भी बता रही है, राइट? कई लोग साइंटिफिक होते हैं, स्पेशली आजकल के न्यू जनरेशन, दे वांट साइंटिफिक फैक्ट्स, तो उन लोग के लिए स्टडीज हैं, जिनको विश्वास है अपने इंडियन विजडम में। फैबुलस। नेक्स्ट, Vanessa is a young Hispanic woman who has had an incredibly difficult life this far. Widowed after her husband succumbed to sudden illness, she was having a difficult time coping with her grief. I met her at one of my large workshops, where I picked her at random from the audience to demonstrate an individual regression. As an audience of 500 looked on expectantly and her father watched anxiously, she went into a deep trance. The important part of Vanessa's regression occurred in her mother's womb, in utero, before Vanessa's birth. In a deep state of relaxed concentration, she described the beautiful and peaceful light that permeated both her and the womb, providing a spiritual nourishment that complemented the nourishment of her mother's body. She could feel the love and welcome of her parents. At this moment, Vanessa's facial expression changed from a blissful state to one of astonishment and awe. I am aware of everything. I know so much. I can feel everything. I can see and feel everything. Vanessa seemed to be stunned by the depth of her awareness from within her mama's womb. Her eyelids fluttered under closed lids as she was silent. She later told me in that moment, she was observing many things. Later, her father would confirm details of scenes that they had glimpsed before her birth. I can see the events of my life to come. They have a purpose. They are not the accidents I thought, she said firmly, shifting to a higher perspective. As she experienced the light, the sense of heightened awareness and the recognition of her life's plan and destiny, the grief she had been carrying around began to lift. Her life was being transformed in the present time through memories and experiences rooted in her own in utero experience. जब उसने रियलाइज करा कि उसको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आ गया, उसको अपने प्रेग्नेंट हालत में उसने क्या चीज देखी थी वो समझ में आ गया, उसके साथ चीजें लाइफ में क्यों हो रही समझ में आ गया, उसने अपने आप को विक्टिम मोड से मेरे साथ क्यों हो रहा है बोलना हटा दिया, एकदम से उसकी जैसे बोलते हैं दिन की बत्ती जली, विच मीन्स लाइट आई। बत्ती जलना तो मतलब ये भी तो ना एकदम से रोशनी हो गई, अंधकार खत्म हो गया। तब उसको अवेयरनेस, जागरूकता आई कि अरे मेरी तो ये लाइफ का प्लान था, ये तो मेरी किस्मत में लिख के आई थी, और मैं इतने टाइम से अपने आप को विक्टिम बना रही थी, लड़ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, सारा भारीपन एकदम से निकलना शुरू हो गया। लाइफ क्या हो गई? इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो गई। कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई? कोई मेमोरीज आई, कोई एक्सपीरियंसेस जो हमने कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान, मामा की प्रेगनेंसी के दौरान फील किए थे, उनसे हीलिंग हो गई। So it's very beautiful. Memories from the in utero period are important for many reasons. They promote clinical improvements in patients whose symptoms derive from early childhood traumas and relationships. In addition, these memories demonstrate that an actively engaged consciousness exists before birth, that the fetus and infant are aware of so much more than we thought.
They are perceiving and integrating a great deal of information. In light of this knowledge, we should rethink how we interact with these tiny beings. They're keenly tuned into the expressions of love that we communicate to them through words, thoughts, and feelings. आप कभी भी किसी प्रेग्नेंट इंसान के पास हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा किस टाइप की बातें आप कर रहे हैं. कहीं ना कहीं संस्कार उस बच्चे में knowingly unknowingly पड़ रहे हैं. In the second day of the workshop, one of these strangely simultaneous life events occurred before the entire group. Again, I picked a volunteer to demonstrate an individual regression, this time using a more rapid type of hypnotic induction. Anna, the volunteer patient, had missed the previous day because of an illness. Nobody had told her about the regression with Vanessa. Slipping quietly and deeply into the trance state, Anna also went back to the in utero period. She began to describe the beautiful golden white light, her awareness of events, both inside and outside her mama's body, and her own. The reason she was choosing those parents and this coming life, and how her life would be structured to best accomplish her soul's objective. अब एना भी अपने ममा के कोख में वूम में चली गई और अवेयर हो गई कि मैंने अपनी मॉम डैड को क्यों चूज किया, मेरी आगे की लाइफ कैसे आने वाली है और मेरी लाइफ कैसे स्ट्रक्चर होगी और मैं अपने सोल का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करूंगी. सोल I'm sorry, we were lost for some time. I will again share my screen. All right. So, जब कभी हम लाइफ में अपने सोल के ऑब्जेक्टिव के साथ जीना शुरू करेंगे, तो पहली बात तो आपको वो काम करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने वो काम चूज किया है अपने लिए. जापानीज को बोलते हैं इकिगाई. सुबह उठने में मजा उठ रहा हूं मैं. डॉक्टर वाइस बोलते हैं such simultaneous or synchronous events in my work, I am still always surprised by their statistical improbability. The entire audience was stunned. Only Anna was unaware that was transpiring was a nearly exact repetition of the previous day's regression with Vanessa. Perhaps the group needed to hear the message twice that we are not here by some coincidence of nature. We are divine beings enrolled for a while in this planetary school, and we have devised a curriculum in order to enhance the learning process. We are from the light, yet we are of the light, and we are so much wiser than we could ever imagine. All we need to do is remember. कितना सुंदर मैसेज है. हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं. हम एक प्लैनेटरी मदर अर्थ के स्कूल में एनरोल किया हुआ है. हमने अपना खुद का करिकुलम, क्या लेसन सीखने हैं, प्लान करा हुआ है ऑर्डर में, सो दैट हमारा लर्निंग प्रोसेस एलिवेट हो जाए. हम सब लाइट से आए हैं. हम सब लाइट हैं. हम सब बहुत वाइज हैं. जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी विजडम है हमारे अंदर. क्यों? क्योंकि सोल की वजह से हम है ना. सोल तो
मिलियंस ऑफ लाइफ जी के आई है। मिलियन ऑफ लाइफ का मतलब कितना विजडम होगा। और हमें लगता है मैं 20 30 40 50 60 साल की हूँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो मैं उतना नहीं हूँ, इनको तो कब से अध्यात्म आ रहा है। अरे आपको भी तो आता है, आपने टैप इन ही नहीं किया। हम कुछ भी जो पढ़ रहे हैं ना, सोल के लिए नया नहीं है। मी द पर्सन, आई मी एंड एम जिसको बोलते हैं, उसके लिए नया हो सकता है, बट सोल को तो पता है। बट इस लाइफ में आप भूले बैठे हो, तो आपने ये मॉर्निंग सेशन का सहारा लेकर अपने सोल की कॉलिंग थी, तो इसलिए आप वापस सीख रहे हो कि अब मुझे इनको इम्प्लीमेंट करना है। और आपने ज्वाइन भी किया इस महीने में, कहा जब आपको लेट को करने में बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज अपने आप यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज आर वर्किंग, कि आपका जो भी भार है उतार के फेंक सकते हो आप, वो हेल्प करेंगे आपको इसमें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन पढ़ते हैं, अमेजिंग चाइल्डहुड मेमोरीज। अभी हमने जो बात करी, वो हमने बात करी कि सोल लेवल पे माँ की कोख पे क्या क्या मेमोरीज आती है। अब चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करते हैं। जैसे वेस्टर्न साइंस में कहते हैं कि 7 प्लेन होते हैं। जैसे हम लोग नर्क और स्वर्ग बोलते हैं, ऐसे 7 रेल्म्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, जिसके साथ हमें पास करना होता है और फिर हम वापस आते हैं ट्रांजिशन के लिए। आइए समझते हैं। There are 7 planes, 7 through which we must pass before we are returned. One of them is a plane of transition, where you wait. In that plane, it is determined that you will take back with you into your next life. आप हर रेल्म पे काम, जैसे हम मदर अर्थ पे काम करते हैं ना, कोई कुकिंग का काम कर रहा है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, या कोई मदरिंग का काम कर रहा है, कोई दादी माँ का काम, कुछ भी हम कुछ ना कुछ काम यहाँ करें ना। इवन जो प्लेन ऑफ ट्रांजिशन है, जब हम लाइफ एंड डेथ के बीच में आते हैं, वहां पर भी हम काम करते हैं, वहां पर भी हम अपने आप को एनरिच करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब मैं यहाँ पहुंच गया, अब मैं आगे की लाइफ में जाना चाहता हूँ। We are born with a considerable memory of our true home, the other side, that beautiful dimension that we have just left in order to enter a physical body once again. We are born with a tremendous capacity to receive and to give love, to experience pure joy, to experience the present moment fully. As babies, we do not worry about the past or the future. We feel and live spontaneously and completely in the moment, as if we were meant to experience this dimension. The assault on our minds begins when we were young, cultural, religious values, and opinions that suppress our inborn knowledge. Should we resist this onslaught, we are threatened with fear, guilt, ridicule, criticism, humiliation. Ostracism, withdrawal of love, or physical and emotional abuse may also loom. Our parents, our teachers, our society, our culture can and often do teach us dangerous falsehoods. Our world is the evidence of this, as it staggers recklessly towards irreversible destruction. If we allow them, children can show us the way out. इस बात को समझिएगा। 7 प्लेन से हमारी लाइफ गुजरती है, ट्रांजिशन की प्लेन से होकर हम नई लाइफ में आते हैं। और जब हम नई लाइफ में आते हैं, हम कुछ मेमोरी, कुछ नहीं बहुत मेमोरी बैंक लेकर आते हैं दूसरे साइड के बारे में, जहां से हम आ रहे हैं, जहां फिजिकल बॉडी में हम नहीं थे, लेकिन हम उसको टैप करते हैं आधी बार हिप्नोसिस में, क्योंकि हमने अपने आप को इतना एलिवेट नहीं किया होता कि हम कभी भी कहीं पर भी चले जाए। जैसे अब मैं आकाश की रीडिंग करती हूँ, अब बहुत इजी है, आंखें बंद किया एंड वहां पहुंच गए, टैप इन कर गए, बिकॉज मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। हमारी जो ह्यूमन बॉडी आती है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है प्यार लेने की और प्यार देने की, क्योंकि वो प्योर लव है, अनकंडीशनल लव है, प्योर जॉय है, और हम पूरी मोमेंट को बहुत एंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा है अपने आप को कि आप किसी पार्टी में जा रहे हो या किसी सैर करने जा रहे हो, आप अपने फोनों से चिपके रहते हो, आप भूल जाते हो कि पार्टी में क्या ऑफर करने को है। म्यूजिक है, अच्छा खाना है, अच्छी कंपनी है, अच्छी बातें हैं, या पार्क में फ्लावर्स हैं, बटरफ्लाईज हैं, ट्रीज है, घास है, जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो वो है, लोग हैं, आवाजें हैं, और आप
आप बिजी हो जाते हो इन स्मार्टफोन्स व्हिच आर गोइंग टू मेक यू अनस्मार्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को कट ऑफ करना। इस दुनिया में जब हम आते हैं ना, सोसाइटी ऐसी है, रंग ऐसा होना चाहिए, वजन ऐसा होना चाहिए, पैसे का रुतबा ऐसा होना चाहिए, हमारे समाज में ऐसा होता है, हमारे रिलीजन में ऐसा होता है, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं पहुंचोगे तो वैसा हो जाएगा, ज्यादा ये कर लिया तो रॉन्ग है, ज्यादा ये कर लिया तो वो, सबको बुरा फील कराओ, बुरा फील कराओ, बुरा फील कराओ। हम भी एज माँ बाप इतना बच्चों को बोलते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही ट्रैक पे लाएं तो प्रॉब्लम, नहीं लाएं तो प्रॉब्लम। लेकिन जितना हम प्यार देंगे, प्यार देंगे, प्यार देंगे, उतना वो बच्चे भी प्यार में रहेंगी, उनको सिक्योरिटी रहेगी, और वो हमको कहीं ना कहीं हील भी करते हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, सोसाइटी, टीचर्स, पेरेंट्स आपको गलत राह पे ले आएंगे, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और वो डिस्ट्रक्ट करता है आपको। बट जब आप रॉन्ग राह पे चले जाओगे, बच्चों में वो ब्यूटीफुल चीज है कि आपको सही राह पे ले आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अनकंडीशनल लव है। थोड़े एक दो और स्टोरी देखते हैं, फिर हम सेशन कंक्लूड करेंगे। There is a well-known story in which a mother enters her infant's room and finds a 4-year-old daughter hovering over the baby's crib. You must tell me about heaven and about God. The toddler implores his sibling. I'm beginning to forget. We have all much to learn from our children before they do forget. In this life and in all of our others, we too have been children. We have been remembered, we have remembered, and we have forgotten. And to save ourselves and to save our world now, we must remember again. We must courageously overcome the brainwashing that has caused us so much grief and despair. We must reclaim our capacity for love and joy. We must become fully human once again, as we were when we were young. So इसीलिए बोलते छोटे छोटे बच्चों से सराउंड करो अपने आप को, उनको बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। बड़े होते जाते हैं तो बोलते जाते हैं। So ये एक बच्चे now in his 20s told me about her son's strange behavior when he was 3. The family's dog had just died, and she left her son with the dog as she went to the next room to phone the vet to make arrangements for the dog's body. When she returned, a stunning sight awaited her. I came into the room and he has a dog all wrapped. His feet are wrapped with band-aids and butter. He's buttered the dog all the way, all over the head and the tail, and then he's wrapped the whole dog, dead dog, with all this stuff. I said, God, what are you doing? Her son answered, Mummy, I'm making sure that she slides into heaven faster. वो डॉग मर गया है, वेट के पास जाके तैयारी कर रही है उसको, उसकी बरियल किया, कुछ वापस आती है तो बच्चे ने खूब सारा मक्खन लगा दिया डॉग की बॉडी में, बैंडेड लगा दी, सब लगा दिया। क्यों? बोलता है कि वो हेवन में स्लिप कर जाए फटाफट। मक्खन स्लिपरी होता है तो मक्खन लगा दे कि स्लिप कर जाए। बच्चों में ये मासूमियत, इट्स ब्यूटिफुल। मम्मा का बोलना है, and I thought, oh, that's something he must have seen on Sesame Street or whatever. I mentioned this some years later, before I knew about past lives, to a friend who said very nonchalantly over a cup of tea, oh, he must have been an Egyptian. And that's what they did when their dogs died. In a past life, he was an Egyptian and he buried his dog wrapped in oil and bandages. Egypt में ये normal चीज है जो उस बच्चे ने करा। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा बच्चा पहले इजिप्शियन था, क्योंकि इजिप्ट वाले बटर ऑयल में और बैंडेजेस में अपने डॉग्स को रैप अप करके डालते थे। The next day, a friend brought over a book depicting the burial practices of the ancient Egyptians. When she showed me the picture in the book she brought me the next day, it was exactly what a dog looked like. It was scary. I asked my son if he remembered doing that with the dog. And he said he did. And he said that the minute she died, he knew that's what he had to do. He had to go take care of her because the soul was old and went to work. वो बोला मुझे पता था, डॉग की सोल एकदम उसके बाहर थी, मुझे पता था मुझे ये करना है।
3 साल का बच्चा, उसको सारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद है। सो कभी हम कुछ चीज ऑटोमेटिकली करते हैं क्योंकि हमें वो या तो पास्ट लाइफ से पता है या इस लाइफ से पता है। शुरू में जब हम गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच होता है, रेयर व्यू मिरर पे बात नहीं करो, मैं गाड़ी में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। और जब गाड़ी चलाते हैं 1 बार 2 बार 10 साल 15 साल 20 साल, फिर क्या होता है, बात करते हुए कई बार मोबाइल भी देख लेता हूँ, अब बात भी कर लेता हूँ, म्यूजिक भी सुन लेता हूँ, आगे भी देख लेता हूँ, पीछे भी देख लेता हूँ। क्यों? पता है। कुछ चीजें हम ऑटोमेटिकली करते हैं, पता है, पहले लाइफ में करा हुआ है, इस लाइफ में करा हुआ है, सो कोई बड़ी बात नहीं है। She concluded that I am convinced now that he was an Egyptian, which is great because we are Jewish and it's a nice blending of our cultures. अब ये मदर की अपनी कहानी है। The writer Carrie Williams told me about another fascinating case. This one with the 2-year-old twin boys living in New York City. Their father was a prominent physician. One day, he and his wife observed the twins speaking a strange language to each other, a language more sophisticated than the one toddlers often invent. Rather than using made up words for familiar objects like television, telephone, these twins were speaking a much more complicated vernacular. Their parents had never heard these words. They brought the boys to the linguistic department of Columbia University, where a professor of ancient language. Aramaic is a virtually extinct language now spoken only in remote areas of Syria. This ancient Semitic language was primarily spoken in the environs of Palestine around the time of Christ. You cannot pluck such an ancient tongue from late night cable television, even in New York. You can, however, retrieve this knowledge from your past life memory banks. Children are especially adept at that. So, itna beautiful है ना? Twins, छोटे से बच्चे हैं, 2 साल के, अच्छा ट्विंस हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ में तभी माँ की कोख में आए। 2 साल के बच्चे एक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो एक्सटेंड हो चुकी है, जो क्राइस्ट जब पैदा हुए थे उनके क्राइस्ट के टाइम की लैंग्वेज है। आप सीख तो नहीं सकते, जो एक्सटेंड हो गया क्या सीखोगे? 2 साल के बच्चे, कभी किसी टीवी में नहीं आता, कुछ नहीं आता, बट कैसे पता है उन लोग को? पास्ट लाइफ से। चिल्ड्रन बहुत रेडी होते हैं 3-4 साल 5 साल तक की उम्र में, बहुत कुछ उनको मैजिक होता है। तब भी बोलते ना, शुरू में जो संस्कार डाल दो बिकॉज सब कुछ उनको पता है, वो वापस याद आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा उनके लिए। For example, you can ask your young child if he or she remembers when they were big before. Listen to the answer because it may be more than the product of an active imagination. Your child may actually provide details of a past life. Observing the joy and spontaneity of children at play is always rewarding. Many of us have forgotten how to have fun and enjoy the simple pleasures of life. We worry too much about concepts, success, failure, what kind of impression we are making on others, about the future. We have forgotten how to play and have fun, and our children can remind us. They remind us of our earliest values, of those things that are also really important in life. Joy, fun, mindfulness of the present moment, trust, and the value of good relationships. Our children have so much to teach us. Beautiful. So some of you told me that you were कि आप चाहते थे कि सेशन कंप्लीट हो जाए बिकॉज आपको आगे जाना है। सो फीडबैक, हमने सुबह शुरू में 10 मिनट की मेडिटेशन करी थी, आज बहुत पावरफुल मेडिटेशन थी मॉर्निंग की। जिन लोगों ने मिस करी है, आप रिकॉर्डिंग से प्लीज कर लीजिएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है टू डू दीज मेडिटेशंस। आइए, लेट्स कंक्लूड आवर सेशन विद अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। उसके लिए आइए, लेट्स क्लोज आवर आईज। And if anybody wants to be part of the energy blessings, you can switch on the cameras. नहीं तो any which ways blessings पहुंचती हैं. Just that if you see energy of each other, you're more blessed. Let's close our eyes. Hands in a comfortable resting position on your legs, facing heavenwards, or in the Gyan Mudra, or crossed with each other.
palms intertwined with each other, whatever is comfortable. Just check if your back is straight, if you're comfortably seated. Let's take a deep breath in and be grateful for all last week not matching. ऐसे हो सकता है कि पहले हमारे कुछ beliefs हों, आज वो shatter हुए हों, या कुछ नया विश्वास आया हो. तो जो नया विश्वास आया है, नए लेसन्स आए हैं, उनके लिए थैंक यू. और जो जिसका अब कोई मतलब नहीं है, जो चला गया, उसके लिए थैंक यू because it's no longer relevant. Take another deep breath in and exhale. Remember, जब हम 7 times in and out करते हैं, inhale, exhale करते हैं, हमारे ईड़ा एंड पिंगला नाड़ीज एक्टिवेट हो जाती हैं, एनर्जी चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. एंड एक्सहेल, inhale and slowly exhale. Inhale good learnings. Exhale redundant, what is not required, or any kind of negative beliefs. Inhale and exhale. ईड़ा एंड पिंगला नाड़ीज को एक्टिवेट करने का ये भी मतलब है, जब ये नाड़ीज एक्टिवेट हो जाती हैं, इनके बाद हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो सेंटर में चलती है सॉलिड, उसमें एनर्जी भरनी शुरू हो जाती है हमारे रूट चक्र से. रूट चक्र जब हम बैठे रहते हैं तब पेट के नीचे होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी में, और ब्रह्मांड चक्र जो हमारे सबसे ऊपर क्राउन चक्र होता है उस तक मूव करती है. तो अगर हम ब्रीदिंग अच्छे से करते हैं तो हम ईड़ा पिंगला को एक्टिवेट करते हैं, और जब हम और मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी नीचे से ऊपर फ्लो करती है. इसके लिए तभी हम बैक सीधा करके Like thankful for life we've learned come back to us to make us a better person. और थैंक करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने एंसेस्टर्स को, जो हमारे रूट हैं, हमारी फाउंडेशन है, और हमारे इनिशियल फॉर्मेशन ईयर्स को जहां हम ग्रो हुए हैं. अगर आपका रूट चक्र ब्लॉक था, आपको इनसिक्योरिटी थी, तो अभी आप उसको एक्टिवेट करके ओपन कर रहे हैं. Go up and finally keep moving up. हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं. One by one, keep moving up. सेक्रल चक्र में आते हैं. जो सारी सोल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नीचे के 3 चक्र ब्लॉक्ड होने पे ही होती हैं. सेक्रल चक्र को खोलिए. फील द एनर्जी देयर. सेक्रल चक्र आपके नाभि के 4 इंच नीचे होता है. आप चाहें तो वहां अपना हाथ भी रख सकते हैं, जैसे आप उसको ब्लेस कर रहे हैं. जो ब्लॉकेजेस उसमें हैं वो खोल रहे हैं. Because you're a channel of love and light. Feel the tingling and allow the energy to move up. अब आप अपने स्वादिष्ठान चक्र में आ रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र, जहां आपके सारे ड्रीम्स, एम्बिशंस होते हैं. मे बी ये आपकी नाभि के 4 इंच ऊपर होता है. Again, touch it. Feel the yellow color flooding in it. मूलाधारा में रेड होता है, सेक्रल में ऑरेंज होता है,
सोलर प्लेक्सस में येलो होता है, कलर ऑफ द सन समझ लीजिए। एंड खूब ब्लेसिंग दीजिए कि आपके कोई भी रुकावटें हो, ब्लॉकेजेस हो, वो अभी क्लियर हो रही हैं। और ऊपर आइए अनाहत चक्र में, हार्ट चक्र में। मदर को याद करें, अपने अंदर बसा लें। हार्ट चक्र हमेशा रेडी टू गिव लव। ये ब्लू कलर का होता है। शिव जी का कंठ ध्यान करें। गिव इट ब्लू एनर्जी। could give the blue sky color also, कि आप अपने लिए हाँ ना सही गलत बोल पाए, एक्सप्रेशन कर पाए, सीख पाए। ऊपर अग्नि चक्र में आए, थर्ड आई चक्र एक डार्क इंडिगो कलर का होता है, डार्क ब्लू। फील दैट एनर्जी कि आप इंट्यूटिव बन पाए, फ्यूचर में देख पाए, पहले में टैप इन कर पाए इस पॉइंट के। और सबसे ऊपर जो आपका सहस्त्रार चक्र होता है, क्राउन चक्र होता है, दोनों का जहां मिलन होता है वहां सोल वास करती है। तो सोल को ऊपर से गाइडेंस मिलती है क्राउन चक्र से, और वो थोड़ा चक्र से हमें दिखाती है। सबकॉन्शियस माइंड भी उसके पीछे ही है कि हमें क्या दिखना है, जो रिग्रेशन प्रोग्रेशन में हमें हेल्प करता है। So इसको एक्टिवेट करें, giving it nice indigo massage if you want. Feel the indigo light. फिर आप फाइनली अपने सहस्त्रार चक्र जो आपके एकदम हेड के ऊपर है, वायलेट कलर का, अब आप ऊपर देखें, there's a beautiful universe up in multiple colors, something similar to my background, if you can remember. And वहां से ब्यूटीफुल हीलिंग व्हाइट लाइट आपकी बॉडी के अंदर फ्लड कर रही है सहस्त्रार चक्र से, क्योंकि अब पूरे आपका इगड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी सारी एक्टिवेट हो गई हैं। सो नाउ यू क्लियर चैनल ऑफ लाइट। अब जो भी रुकावटें बॉडी में हैं सब खत्म हो रही हैं। कहीं पर कोई दर्द था, खत्म हो रहा है। कोई उलझन थी दिमाग में, खत्म हो रही है। अब आप फील करिएगा आज में, कल में, परसों में आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। एंड नाउ लेट्स टू ग्राउंडिंग। एनर्जी जो आ रही है, फील द एनर्जी ट्रैवल इनटू योर लेग्स एंड गो इनटू मदर अर्थ। मदर अर्थ से आप सॉलिड फाउंडेशन मिल रही है, एकदम आप वहां खड़े हैं। मदर अर्थ आपको एनर्जी दे रही है नीचे से ऊपर, फादर यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रहे हैं ऊपर से नीचे। आपकी बॉडी में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एनर्जी मूवमेंट हो रही है। फील द मूवमेंट इन कंसेंट्रिक सर्कल्स। Feel the absolute energy flow. Feel the tingling. And with this tingling, start blessing everybody. So, आप blessing का हाथ ऊपर बढ़ाएं। Loka samasta sukhino bhavantu. Let all planets, all realms be in love and peace. सबका मंगल, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो, मंगल मंगल मंगल। Keep blessing, keep blessing. Every pore of your body is full of love and light. And you are a channel. I am a channel. We all are channels of love and light. May all of us keep spreading the love and light for making this world a better place to live in. Be blessed. Be blessed. Be together. Feel the heat and bless your entire body, top to bottom, face, everywhere. And gently, smilingly open your eyes. Lots of blessings, such beautiful faces, Pratima ji. You're on a holiday and I can see you glowing. Lots of love and blessings to you. To you, It's a beautiful place. Madhuri. I hope you all feel good and everybody else whose cameras are off. Yes, please bole.
It's such a beautiful place here, tea gardens. I wish I could show you the view outside. If you can see, Oh, just see. wow. Looks, there's a nice mist. Beautiful. Lovely. Yeah, it's so beautiful. Beautiful Absolutely benches. wonderful. Yeah. You Yeah. and heaven and earth. Lovely. Beautiful. So glad. Thank you for showing us this beautiful place. Lovely. All right. प्राची So, जी, मुझे आपको हाँ ना जी. बहुत बहुत थैंक यू बोलना है, बहुत थैंक यू ना, इतना ग्रेटिट्यूड कि मुझे जो चाहिए था ना, सच में आप तो वही लेकर के आ गए। मतलब ऐसे मास्टर हमने अपनी लाइफ में नहीं देखे कि उन्हें पता है कि मेरे स्टूडेंट को क्या चाहिए, वो इस समय किस चीज ले बैठे हैं और आप वही चीज लेकर के आ गए। और आपने मतलब मेरे को मौका दिया मतलब हम सच बता रहे हैं, बहुत आपको मतलब दिल से ग्रेटिट्यूड है, दिल से ग्रेटिट्यूड। I'm a mere channel, but I'm very grateful to my masters for making me a channel. So because you had to learn and because I had to learn also, we are all connected with love. That's the only language we speak, right? So I'm so glad that you're finding these sessions beautiful, and that's what your soul required right now. So more क्योंकि power to you. ये Lots of love. अप्स एंड डाउन जब आते हैं ना, तो माइंड में ये चीजें आती है कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। तो मतलब ये लग रहा है कि सब आंसर मतलब मिल रहे हैं कि मेरे साथ क्यों, मतलब ये तो हम खुद लिखा करके अच्छा, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन था कि हम जब लिखाते हैं तो हम अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों लिखाते हैं, हम अच्छा अच्छा क्यों नहीं लिख लेते हैं? क्योंकि ये आपका कार्मिक बैगेज चलता आ रहा है. ओ आप पुरानी लाइफ नहीं देख पा रहे हैं. इस लाइफ में आपको अभी ये स्ट्रगल खत्म कर लेंगे ना, तो बाकी लाइफ में नहीं आएगा. तो इस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करें, अच्छे से वेलकम करें. स्ट्रगल में जब आप परेशान होंगे, झुंझलाएंगे, घबराएंगे, तो स्ट्रगल और स्ट्रगल करेगा. पर आराम से निकल जाइए कि जो आ रहा है आता जाए, आता जाए, आता जाए. क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है क्यों हो रहा है. हमारे कार्मिक थे बैगेजेस. सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि हमें इन प्रॉब्लम्स को से गुजरना है. और ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये लेसन्स हैं. उस लेसन को सीखिए, तो दोबारा फिर प्रॉब्लम आएगी. सिंपल चीज है. नो रॉकेट साइंस. सो विद अ स्माइल सब कुछ से गुजर जाओ. दिस टू शैल पास सुना होगा ना. यस, सबसे प्रोफाउंड लेसन है लाइफ का. बस ये मंत्र बोल लीजिए, लाइफ निकल जाएगी अच्छे से. कुछ भी नेगेटिव आया, दिस टू शैल पास. पॉजिटिव आया, दिस टू शैल पास. हम क्या होता है, मैंने वो आपको बताया था, वी हैव 7 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस अवेकनिंग. उसके बारे में लंबा पूरा सेशन होगा, विल टॉक अबाउट इट. जब ब्लिस की स्टेज आती है तो हम अटैच, अरे आई कांट लीव, इतना बढ़िया टाइम चल रहा है. जब वो वॉइड आता है उसके बाद, अरे यार कितना अच्छा टाइम था, वैसा क्यों हो रहा है. हम अटैच्ड हो जाते हैं. इस अटैचमेंट को ही तो काटना है. इंडियन मदर्स बच्चों से बहुत अटैच होती है. बच्चा बच्चा, पोता पोती, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, उनके आगे ये वो. अपने लिए तो कब हम काम करते हैं. सो अटैचमेंट इज गुड, बट नॉट लाइक बॉन्डेज. थोड़ा फर्क है. थोड़ा सा गिव लव टू एवरीवन फॉर यू टू लर्न. उनको प्लीज एंजॉय करें. डोंट क्वेश्चन टू मच. ऊपर वाला है ना, छोड़ दीजिए उसके हाथ में. वो है, इसीलिए है. आपने वो कहानी सुनी होगी ना, वो जब एक इंसान की डेथ हो जाती है, ऊपर जाके बोलता है मेरी इतनी कठिनाई थी, मैंने लाइफ लॉन्ग देखा 2 कदम चल रही, डेथ हो गई, मैं ऊपर आया तो आप क्यों नहीं थे मेरे साथ. तो भगवान जी क्या बोलते हैं, वो मेरे पद चिन्ह थे, तुमको मैंने गोदी में उठा रखा था. वो हमेशा हमारे साथ हैं. अभी आपने पढ़ा डॉक्टर वाइस के साथ ना, कि जब हम रीइंकार्नेट करते हैं एक लाइफ में, हमारे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, गार्डियंस हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी सोल के साथ होते हैं. कोई एज फिजिकल पीपल, कोई जस्ट एज एनर्जी. उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना. इसीलिए बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस. मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितने डार्क टाइम से निकली हूं अभी, but I'm so grateful for the dark time.
क्योंकि ये साइकिल है, सबको गुजरना ही पड़ता है। अभी भी हमने पढ़ा ना 7 रेल में, आपको क्रॉस करके आना ही पड़ेगा दोबारा, तभी धीरे धीरे असेंशन होगा। इट्स नॉट, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं आता आप आ गए तो अरे सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। उसको फेस करना आ जाता है एक्चुअल में, उसके साथ में हमको कैसे रिलेट करना है। स्पिरिचुअल लाइफ में आके ये चीज तो बहुत सीखा कि कुछ भी आ रहा है तो उसके साथ हमको कैसे स्ट्रांगली आगे निकलना है। बस इतना ही है। जब मेरा वो डार्क टाइम आया, बहुत डार्क टाइम था, फोन पे बात करने का मन नहीं, कुछ सेशंस करने का मन नहीं, आई न्यू कि दिस इज माय दैट टाइम। मैंने क्या किया, रिट्रीट्स पे गई, वेलनेस रिट्रीट्स पे, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पे गई। मुझे पता है ना अभी कुछ होने ही नहीं वाला, कुछ भी कर लूंगी, कुछ एनर्जीज डिफरेंट है। तो अपना 3-4 हफ्ता इजिप्ट में रहना है, अपना 3-4 हफ्ता ऋषिकेश में रहना है, 3-4 हफ्ता हरिद्वार में रहना है, बाली में रहना है, रिट्रीट्स करनी है, बस जो करना है करो, हॉलिडे पे जाना है जाओ। मैं थी ही नहीं यहाँ पे, आई डेंट वांट टू बी हियर। एंड अब लोग बोलेंगे अभी माय यंगर डॉटर स्टिल विद मी, 11th क्लास में ही तो है, बट आई नो ना, मैंने इस लाइफ में अपने जो अच्छा काम पहले किया है, अब ऐसा सिचुएशन बनाया है कि मैं अध्यात्म में अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ। ये बहुत पुण्य का ही होगा ना, पहले क्या रहा हुआ कि आज मुस्कान तविशी लुक्ड आफ्टर बाय द फैमिली सो ब्यूटीफुली। उसकी कॉलेज में है, तविशी स्कूल में, बट दादी हैंड्स ऑन दादी, चाचा जी से बेटा चाचा जी नहीं मिलेंगे, पापा से बेटे पापा नहीं मिलेंगे। तो इतने लोग हैं तो एक मॉम का ही क्या हर समय काम। मैंने तो अपने आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी कि मेरे बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। अरे आई एम सो ब्लेस्ड। इसी को मैं बोलती, डिटैचमेंट करना इंपॉर्टेंट है, टू बिकम अ लिटिल सेल्फिश, टू बिकम मोर सेल्फलेस। अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे तब, मेरे अंदर अगर प्यार मोहब्बत होगा तभी तो मैं दे पाऊंगी। मेरे अंदर कुंठा रहेगी तो मैं कैसे जो दूंगी वो भी कुंठा ही दूंगी ना। लेडीज क्या करती हैं, आप लोग थोड़े लेडीज दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे तो मैं बोल रही हूँ, सबके लिए करते रहते हैं, करते रहते हैं, चक्की की तरह पिसते रहते हैं, घुन भी पिस रहा है, चक्की भी पिस रही है, आप भी पिस रहे हो। बाद में क्या फ्रस्ट्रेशन होती है, मैंने तो इतना किया मुझे तो मिला ही नहीं कुछ, मतलब लोग रिकग्नाइज नहीं करते, मैं तो करती रहती हूँ, कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता। तो इतना क्यों करते हो, वाह वाह के लिए ना। सेल्फ लव, हमने सुना होगा ना, सेल्फ लव यही होता है, अपने आप को प्रायोरिटी देना। अब आप सब सेल्फ लव में हो। मॉर्निंग में प्रतिमा जी तो हॉलिडे पे गए हुए हैं, यहाँ पर भी फैमिली बाहर बैठी है, यू कैन सी, अभी उन्होंने दिखाया, बट वो यहाँ बैठे क्यों, उनको अपने अंदर इन्वेस्ट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट शी नोज कि 1 घंटा मैं सेशन कर लूंगी, आई एम नॉट मिसिंग ऑन एनीथिंग एल्स, नॉट मच। दिस इज सेल्फ लव। अब माधुरी को पता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड उसको पता है सेशन ये टाइम पे खुला उसके लिए, शी जॉइंड। अब वो रोज आ रहे हैं, उनको रोज breakthroughs मिलेंगे बिकॉज अब वो सीख रहे हैं। This is what soul journey is. So thank you for asking and sharing. Madhuri, do you want to share something? Are you a little better today? अगर आप कुछ पूछना, Prachi, unmute it's कर not a family holiday, 24 ladies all gossiping, chatting, having fun. But सकते। yet I said I cannot miss my class, whatever it happens. How Connection मिलती है. beautiful. Yes, all inner we ladies. ये- How wonderful. How wonderful. देखो, this is very important. अब वो फैमिली के उससे निकल के she's come into that world. That's beautiful. I love it too. Love it. वो Thank प्रतिमा you. आंटी Thank को you. तो बोलेंगे, ठीक है। आंटी हम लोगों को भी बहुत वो करती हैं, चलो सबको मिलना है, चलो सबको मिलना है, मतलब बहुत बड़ा लव यू आंटी। अच्छा है कैलकाटा में आपके पास हैं। मतलब हाँ, हम लोग को मतलब मिलना है, मतलब आंटी को तुरंत All फोन right, होता Rinku. Thank you for your thank you. है। And everybody be blessed. All right. See you tomorrow at 6 o'clock. Until then, be blessed. Lots of love, lots of light, lots of abundance. Thank you. Thank you. Thank you.